Hello dear students, so starting from where we have left in the last lecture, this is the third lecture of chemical kinetics. In the first lecture we have already finished about the introduction of chemical kinetics and the average rate of reaction, and then we have done the graphical representation. In the second lecture we have done instantaneous rate of reaction and the factors on which rate of reaction depends. Now this is the third lecture, and here we'll be studying about that what is the relation between rate of reaction and the concentration of the reactant. As we all know that the rate of reaction usually depends upon the increase in the concentration of reactants. So this is what the relation is, that is, there must be some relation between the rate of reaction and concentration of the reactants. So this relation was studied by Goldberg and Weig in 1864, and they formulated a law which is known as law of mass action. Now what is this law of mass action? To understand it in general terms, it is the quantitative dependence of reaction rate on the concentration of the reactants. So they studied and they formulated a law. So what is the law states? It says that at constant temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting species. तो अभी हमें ये समझ में नहीं आया होगा ना कि active masses क्या है. We'll discuss it in just 2 minutes. We'll be discussing what is active masses. तो अभी हमें क्या समझना है कि reacting species का जो mass है, it is directly proportional to the rate of reaction. Okay, so let us consider this example. This is a general reaction in which we say that A reacts with B and plus C, that is three reactants are present to give some products. Okay, so what does this law states? That the rate of reaction is directly proportional to the concentration of all the reactants, that is square bracket में A, B and C, and raised to the power of its stoichiometric coefficient. ठीक है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे ये जो A है, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इसका मतलब हम जब इस पावर से इसको रेज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यहाँ पे इसका ये जो A यहाँ पे अभी हमने लिखा हुआ है, इसको अभी हम समझ लेंगे कि ये एक्टिव मास है. एक्टिव मास अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेंगे कि जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A. तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे और इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव मास. Here the active mass means the activity. According to Goldberg and Weig, what has happened, that the whole mass of the reactant, whatever reactant we have taken, the whole mass of that reactant may not be equally active during the reaction. Now for understanding this, let's see that when a bucket of water is kept in a sun, only the upper layer is interactive. The rest of the water which is below that layer may not be active at that very moment. When the first layer of water evaporates, then only the second layer comes in contact with the sun rays and the water evaporates. Okay, so this was one concept given by Goldberg and Weig, and they what they assumed that the active mass of a substance in the solution or gas phase is equal to its molar concentration. Although suppose if you are taking a solution or a gas, they have assumed for the feasibility of the reaction or for the ease of calculation, what they assume that for gases and for solution, active mass will always be equal to its molar concentration. But this assumption is valid only for the ideal cases. But for the real system, it is always less than the molar concentration. So that is why this new term activity has been introduced. Let's see
the active mass here, now we'll be saying active mass or molar concentration. So the active mass or molar concentration can be expressed in following two units. First one is concentration unit. Now what is concentration unit? The active mass of substance is termed as is in terms of moles पर लीटर. तो ये पहली यूनिट आ गई, मोल्स पर लीटर पे. कैसे इनक्लोज करेंगे? सेम, जिसका भी कंसंट्रेशन निकालना है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये है एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस ए एंड द यूनिट इज मोल्स पर लीटर. बट व्हाट अबाउट द गैसेस? गैसेस का जो है वो हम पार्शियल प्रेशर में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन. ये हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हमने सीखा है इसको, कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर एन आइडियल गैस. ठीक है, तो इसको हम पी के टर्म्स में जब निकालेंगे तो वी को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी. एंड वेयर टी इज कॉन्स्टेंट, इफ टी इज कॉन्स्टेंट देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, और एन अपॉन वी क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन. So the active masses of H2 and I2 present in a gaseous mixture, इनका partial pressure अगर 0.5 atm each है तो it can be represented like this. Okay, the law is given and it was very helpful also. The law of mass action was very helpful also. But what has happened कि जो हमने इसका stoichiometric coefficient के हिसाब से reactant का निकाला था, जब हमने experimental results देखे तो that differed considerably. ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया उसमें. और इस तरह से इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज ये एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन है, इसका हमने देखा 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2O. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होना चाहिए कि इसके दैट मीन्स NO के और H2 के इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम रेज टू द पावर करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में रिएक्टेंट के इस तरीके से कंसंट्रेशन हम लिखेंगे. लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसी रिएक्शन को देखा तो हमारा रिजल्ट ये आया. दैट मीन्स कि NO के तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन H2 के किसी H2 का स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा था. ठीक है, तो क्या रिवील किया स्टडीज ने कि डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बट नॉट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसका मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 को जितना बढ़ा रहे थे उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, उसके स्क्वायर के नहीं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. सो दैट मीन्स कि जो भी लॉ ऑफ मास एक्शन से प्रिडिक्शंस हुए थे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स उससे डिफरेंट थी. इसीलिए एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ और उसको हमने बोला रेट लॉ और रेट इक्वेशन, जहाँ पे हमने बताया कि उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का. So what does this rate law says? It says that what is rate? The mathematical expression which describes the experimentally observed dependence of the reaction rate on the molar concentration of the reaction is called the rate law or rate equation. That means true expression, जो rate expression है, rate of reaction, it can only be obtained on the basis of experimental data. It has nothing to do with the stoichiometric coefficient. So now you can see what is the new definition now, that rate is equal to, okay, constant and concentration of the reactant to the power n. Now this n may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant. तो यहाँ पे ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं हो सकता है, ये कोई भी और नंबर हो सकता है जिसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ले रहे हैं हम यहाँ पे. ये जो N2O5 है इस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या इसका जो रेट है वो ऐसे डिपेंड होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 2, है ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली N2O5, नॉट इट्स स्क्वायर. तो यहां पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो लेट्स सी इन जनरल, फॉर अ जनरल रिएक्शन
इसमें आपका ए, स्मॉल ए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए है कैपिटल ए का, बी का, कैपिटल बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ और द रेट कांस्टेंट इस तरह से निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट, then concentration, molar concentration of A to the power P and B to the power Q। वे जो power P and Q हैं ये क्या है, ये power P and Q are not the stoichiometric coefficient, क्योंकि वो तो small a और b थे। तो ये P और क्या है, P और Q कुछ भी numbers हो सकते हैं जिसके accordingly experimentally वो reaction हुआ है। Now let's see some rate some reactions according to the rate law। ये वाला रिएक्शन देखेंगे, 2NO + 2H2 gives N2 and 2H2O। तो इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, 2NO है तो NO टू द पावर 2 है, चलो ये तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन H का ये 2 रेस पावर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये उसका रेट है, नॉट व्हाट वी थॉट दैट NO2 और H2 का 2 ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन ये नहीं है और क्या है, ये है। सो समटाइम्स इट मे बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट जैसा दिया हुआ है, समटाइम्स इट मे बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमें रेट हमेशा अलग से पता होगा जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया है। सो दीज आर सम रिएक्शंस जिनका हमने रेट हमें पता है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसका रेट कांस्टेंट निकाला है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ द K which is appearing every time, you can see this K which is appearing is called the rate constant, और इसका दूसरा नाम है velocity constant, या इसको हम also we refer it to as specific reaction rate। And how to define rate constant? It is equal to the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity। यानी रेट बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के अगर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। Okay, now let's see the units of rate constant। So according to the rate law, what will be the rate? Rate is equal to rate constant, then molar concentration raised to some number, that is P, then concentration, molar concentration of reactant B raised to some number Q, then molar concentration of C raised to some number R। यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि PQR are not ABC, क्योंकि यहाँ पे कोई और जो एक्सपेरिमेंटली जो डेटा आया है वो होगा यहाँ पे। तो अगर हम इस PQR को ऐड कर दें तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा N, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम P और Q और R को ऐड करेंगे तो एक N आ जाएगा, तो उसी को जब हम N को यहाँ पे रखने के बाद देखेंगे रेट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर N हो जाएगा, और अगर हम इस K को यहाँ पे रख लें तो इस तरीके से हम रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू दिस पावर N आ जाएगा। व्हाट इज N? N इज whatever power are there on the concentration terms, they are added to bring this N। तो अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, तो रेट का जो यूनिट होगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल्स पर लीटर है, रेज टू द पावर N। सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी मोल टू द पावर 1 माइनस N, वेयर N इज व्हाट, अभी हम पढ़ेंगे आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैसे ही लीटर N-1, वेयर N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, तो गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर ATM 1 minus N and second inverse। Now what are the characteristic of rate constant? Rate constant is a measure of the rate of reaction। Higher the, यहाँ पे इस लाइन को याद करना है, higher the value of rate constant, greater is the rate of the reaction। Okay, then a particular reaction has a definite value of K at a particular टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे K की वैल्यू चेंज होती जाएगी। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
एंड यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिलहाल अभी हम देखते हैं डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया आर, है ना, जिसको हम अभी तक देख रहे थे। और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? हम के बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट इज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। जबकि ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसी टाइम पे, है ना, जो हमने पढ़ा था। लेकिन स्पेसिफिक रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यूनिट ऑफ रेट फिक्स्ड है, दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलग अलग इसकी यूनिट्स निकलती जाएंगी, जो कि हम आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।